So hello everyone, good morning. So today we will solve the next exercise 3.4 of class 10th, right? So first I'm solving, or before starting this exercise, as we discussed, substitution method and elimination method. मैंने आपको elimination method भी बताया है. In what way we can solve the given pair of linear equation by using elimination method. मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे. क्या करता है elimination method पे basically? First we have checked what the coefficient of the variable and then after that their sign. If the sign are same means सबसे पहले टारगेट होता है कि हमें वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना होता है, ठीक है. एंड सेकंड थिंग इज साइन. इफ द साइन आर सेम देन सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड इफ द साइन आर डिफरेंट देन ऐड करते हैं. सिंपल. So because the method is already discussed, so I'm not solving so many questions. I'm just solving fourth part of question number 1, right? And I'm just explaining you word problem of question number 2. That's it. So first of all, I'm solving fourth part of question number 1, which is x by 2 plus 2y by 3 is equals to 1 minus 1. And the second is x minus y by 3 is equals to 3. Right. So first of all, make the equation simple and easier. So that by taking LCM. तो पहले आप first equation का LCM लीजिए and solve it. So what is the LCM of 2 and 3? 6. So it would be 3x and it would be 2 to the 4y is equals to minus 1. So this 6 is dividing here, multiply करने पर और transpose करने पर multiply. So it would be 3x plus 4y is equals to minus 6. ये आपकी first equation है, ये नहीं है, ये वाली equation. Similarly, अब आप इस वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए. 3 into x 3x minus y upon 3 is equals to 3. Right. So again ये डिवाइड में है, ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो 3x minus y is equals to 3 3 is 9. क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इस बार क्वेश्चन का एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करें, बिकॉज आपके क्वेश्चन में है कि सॉल्व बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पहले कर चुके हैं. क्लियर है? सो नाउ सॉल्व दिस बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. सो बाय एलिमिनेशन मेथड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स चेक कर लीजिए. दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x सेम है, राइट? 3 3. एंड नाउ check their sign. This one and this one, both are positive. I told you earlier कि if the sign are same तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. एलिमिनेशन में मतलब हमें उस एलिमिनेट करना होता है, मतलब हमें वो वेरिएबल खत्म करना होता है. तो कोई भी चीज खत्म कैसे होती है, या तो वो खर्च हो जाए आपसे, लाइक यू हैव 5 रुपीज, अगर आपसे पूरा खर्च कर देते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, 0. क्लियर? तो सेम है कि 3 minus 3 is equals to 0. मेरी बात समझ में आ रही है? तभी होगा जब दोनों का क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और साइन उनके कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, तभी वो 0 हो सकता है. सो नाउ दिस इज 3x plus 4y is equals to minus 6 and this is 3x minus y is equals to 9. Because the sign are same, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए. तो सब्ट्रैक्ट करते हैं then their sign would be changed. पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव. बाय एलिमिनेशन मेथड इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. ठीक है, ये पॉजिटिव था नेगेटिव, नेगेटिव था पॉजिटिव और पॉजिटिव था तो नेगेटिव. ये कैंसिल हो जाएगा. 4y plus y, दिस इज 5y एंड बिकॉज बोथ आर नेगेटिव 9 प्लस, बिकॉज नेगेटिव सेम साइन की वैल्यू हमेशा ऐड होती है, ध्यान रखिएगा. राइट. सो माइनस 6 और माइनस 9 माइनस 15, देन y इज इक्वल्स टू minus 15 upon 5, which is minus 3. And after that we need to find x. So now put y is equals to minus 3 in second equation, because यहाँ पर थोड़ा easy रहेगा. So it would be 3 into, sorry, y की वैल्यू है, x हमें फाइंड आउट करना है. So 3x as it is minus और minus 3 is equals to 9. Now 3x minus minus plus
दिस 3 इज पॉजिटिव हियर, ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6, देन x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 3 व्हिच इज 2. इज दैट x कितना आ गया 2 और y कितना आ गया आपके पास -3. So this is your answer. In this way you can solve all the questions easily by using elimination method. So everyone pause the video and note it down. So hello everyone. Now I'm solving third part of question number 2 because first part and second part. This type of question I'm already explained you. Likewise, first question based on fraction and second question is based on age. So these two type of question I have already explained you in last exercise. So now see this question. First of all, read the question carefully. He said the sum of the digits of a two-digit number. So two-digit number में हमारे पास क्या होता है? We have ones place. Suppose we have two-digit number like 10 से लेकर 99 तक सभी नंबर कैसे होते हैं आपके? two-digit numbers होते हैं. इसमें क्या होता है आपके पास? You have ones place और tens place digit. Getting? इसमें आपको नंबर फाइंड आउट करना है. नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए आपको? वंस प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट. तो जो अननोन क्वांटिटी होती है उसे हम क्या लेते हैं मैथ्स में? वेरिएबल्स. तो वही चीज हम लेंगे कि लेट the ones place digit is equals to x and tens place digit is equals to y. Now case 1 पे आइएगा. Case 1 is your first line. The sum of the digits of a two-digit number. तो कौन सी डिजिट है आपके पास? एक वंस प्लेस और एक टेंस प्लेस. यानी कि सिंपल x plus y कितना है आपके पास? 9. So यानी कि फर्स्ट इज x plus y is equals to 9. ये आपकी फर्स्ट कंडीशन. क्लियर? द सम ऑफ द डिजिट्स. अगर यहाँ पर आपके पास वंस प्लेस और टेंस प्लेस दोनों डिजिट को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है? 9 आता है. Now the second condition is, अच्छा before going through on the next level or next step, first of all you must know the number, right? What is a two-digit number? So as we know, is that case 1 आपने लिख दिया, simple. Now ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट? हमें ये पता होता है कि अगर हमारा कोई नंबर वंस प्लेस पर है तो हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और टेंस प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. बाद में ऐड कर देंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा आपके पास. राइट? वही प्रोसेस हम यहाँ पर फॉलो करने वाले. क्लियर? अगर हमारे पास वंस प्लेस पर x है और टेंस प्लेस पर y है, क्लियर, तो क्या करेंगे? बिकॉज y इज ऑन टेंस प्लेस तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा और x अगर वंस प्लेस पर है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा. तो फाइनल नंबर कितना बनेगा? 10y plus x बन जा x. दिस इज माय ओरिजिनल नंबर. क्लियर? आफ्टरवर्ड्स अब आप आगे चलिए. ही सेड कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर. अब जो दिस नंबर है वो ये वाला नंबर है यानी कि ओरिजिनल नंबर. क्लियर? 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. What does that mean by reversing of the order of the digit? Suppose मेरे पास एक नंबर 27 है तो उसका रिवर्सिंग ऑर्डर कितना होगा? 72. वंस प्लेस टेंस प्लेस, वंस प्लेस वैल्यू टेंस पे आएगी, टेंस प्लेस वाली वैल्यू वंस प्लेस पर आएगी. दिस इज कॉल्ड रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक न्यू नंबर फ्रेम करना है बाय रिवर्सिंग द डिजिट. देन आफ्टर reversing the digit, right? न्यू नंबर कितना हो जाएगा? The new number would be, चेक कर लीजिए, आपका x वंस प्लेस पर था तो अब कहाँ आएगा? टेंस प्लेस पर. और y टेंस प्लेस पर था तो कहाँ आएगा? वंस प्लेस पर. तो नंबर क्या बनेगा? न्यू नंबर 10x plus y, राइट? अब केस 2 पर आइए. Now what is the case 2? Case 2 is 9 times this number. This means original number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. So यानी कि 9 times original number is equals to 2 times new number. Clear? Now put the values. What is the original number? You have 10y plus x and 2 10x plus y. राइट? इसको सॉल्व करने पे आपके पास एक नई इक्वेशन आएगी निकल के. सो 10 9s are 90y
9x, 20x और 2y. क्लियर. नाउ वेरिएबल्स और सब वेरिएबल्स को एक साइड में कलेक्ट कर लीजिए. सो 90y, ये 2y इधर पॉजिटिव में ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 9x और ये 20x इधर पॉजिटिव में ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0. माइनस करने पे कितना आएगा 88y एंड दिस वन वुड बी व्हाट माइनस 11x इज इक्वल्स टू 0. अब चेक कर लीजिए यहाँ पर. अब इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज 88 एंड 11 बोथ आर द मल्टीपल ऑफ 11. तो पूरी की वैल्यू को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना रह जाएगा 8y minus x is equals to 0. This is your second equation. Now you got the two equations. X plus y is equals to 9 and the second is 8y minus x is equals to 9. So by elimination method. Clear? So x plus y is equals to 9 and the second is ये 8y minus x लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि minus x plus 8y is equals to 0. Clear? Now coefficient of x 1 1, right? अब ये साइन नहीं देख रहा हूँ and afterwards साइन देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. I told you earlier अगर साइन डिफरेंट है तो क्या करते हैं ऐड करते हैं. Then add them. यानी कि आपने क्या करना है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, राइट. सो जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा सिंपल और 8y प्लस y तो दिस इज 9y इज इक्वल्स 9 प्लस 0 9. तो फाइनली y कितना आ जाएगा 9/9 इज इक्वल्स टू 1. आफ्टरवर्ड्स वही कंडीशन है y की वैल्यू पुट करेंगे एंड देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. सो नाउ पुट y is equals to 1 in first. तो फर्स्ट इक्वेशन थी x plus y यानी कि x plus 1 is equals to 9 implies x is equals to 9 minus 1 is equals to 8. x 8 है आपके पास, राइट, और y कितना है 1. इज दैट ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा? व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? दिस वन इज ओरिजिनल नंबर 10y plus x. सो 10 multiply 1 plus 8 यानी कि 10 plus 8 is equals to 18. So this is your original number. अगर आपसे न्यू नंबर पूछ लेता है तो उस वो कंडीशन में आप यहाँ पर न्यू नंबर वाली कंडीशन वैल्यू पुट करें 10 into 8 plus 1 तो उस कंडीशन में कितना आएगा 81. So I hope so कि क्वेश्चन समझ में आएगा. This type of question is very important. ये आपने क्लास 8 में भी किए हुए हैं, right? So everyone pause the video and note it down. So hello everyone, now I am solving the next part of question number 2 which is fourth part. So it is somewhere different, it is very simple. In class 8 in 2.1 we did this type of question. So this question is based on denomination basically. Denomination means अगर आपके पास 10 rupees के 5 note हैं तो that means 10 multiplied by 5 you have 50 rupees. That is called denomination based question, right? So now Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. तो total amount कितना है आपके पास 2000. Clear? And then she asked the cashier to give her rupees 50 and 100 rupees notes only. And ये उसको सिर्फ 50 और 100 rupees के notes चाहिए. And Meena got 25 notes in all. Total note कितने मिले उसको 25. यानी कुछ उसको 50 rupees के मिले और कुछ उसको 100 rupees के मिले. So first of all हम क्या लेंगे कि let the number of note of rupees 50 is equals to x and the number of note of rupees 100 is equals to y. Clear? Total number of note कितना है आपके पास? is equals to 25. यानी कि उसमें से x नोट तो आपकी यानी टोटल कितना होगा x नोट 50 के और y नोट 100 रुपीस के यानी x plus y is equals 25. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन. ये पहली कंडीशन से बना नंबर ऑफ नोट्स. क्लियर? दिस इज योर केस 1. नंबर ऑफ नोट x नोट ऑफ रुपीस 50 एंड y नोट ऑफ रुपीस 100. तो x plus y is equals 25 नोट्स. क्लियर है? नाउ अब बात करते हैं अमाउंट की. क्लियर? नाउ टोटल अमाउंट कितना है आपके पास?
This is case 2. Total amount is equals to 2000. 2000 रुपीज है और आपके पास नंबर ऑफ नोट कितने हैं 25. क्लियर. अब अगर आपके पास x नोट 50 रुपीज के हैं तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 50 रुपीज की. लाइकवाइज अगर आपके पास 50 रुपीज के 15 नोट्स हैं तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 15 75 750 रुपीज. क्या किया हमने मल्टीप्लाई. सेम इज हियर. टोटल अमाउंट कितना है 2000 यानी कि डिनोमिनेशन कैसे जाएगा 50 into x बिकॉज 50 रुपीज से कितने नोट हैं x तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 50 into x एंड सिमिलरली 100 के कितने नोट है y तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 into y इज इक्वल्स टू 2000. क्लियर. तो ये कितना हो जाएगा 50x. आप सिंपल यहां पे चेक कर लीजिए यानी कि आपकी इक्वेशन रेडी है 50x plus 100y is equals to 2000. मैं इसको इजी करना चाह रहा हूं. So now check it. They all are the multiple of 50. 50, 100, 2000 सब किसके मल्टीपल है 50 के. थोड़ा इसको इजी बनाते हैं. इसको पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना रह जाएगा x. ये कितना रह जाएगा 2y और ये कितना रह जाएगा 40. Get it? So this is your second equation. I hope so कि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. So solve it yourself. My target only to give you the equation. So everyone pause the video, note this question and then solve it yourself. Okay. Now I am just explaining you fifth part और इसमें भी मैं आपको सिर्फ इक्वेशन ही फ्रेम करूंगा. That's it. Solve आपको अपने आप ही करना पड़ेगा. The question number 5 is a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charges for each day thereafter. And सरिता पे यानी कि पहले 3 days का चार्ज कैसा है फिक्स. तो हम क्या लेंगे कि let the fixed charge for 3 days is equals to rupees x. Clear. And charges on per day right कितना है rupees y after 3 days. Get it? So now a person is said कि सरिता paid rupees 27 for a book kept for 7 days. अब आप उसको ऐसे लीजिए एक्सप्लेनेशन कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा. 7 days उसमें से आप 3 days तो अलग निकालिए. क्लियर. और 4 days अलग से निकालिए यानी 3 days का तो चार्ज कितना है x और यहाँ पर आपका पर डे कितना लग रहा है y. अब अगर एक दिन का चार्ज y रुपीज है तो 4 डे का कितना होगा 4y. सिंपल है. अगर एक दिन में आपको ये मानिए अगर आपको पेनल्टी 5 रुपीज की लग रही है एक दिन की पेनल्टी तो 4 डेज की पेनल्टी कितनी हो जाएगी. एक दिन की पेनल्टी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज. क्लियर. तो वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं. सो केस 1 फॉर सरिता राइट शी केप्ट बुक फॉर 7 days. क्लियर. तो 7 days में यानी कि जैसे मैंने आपको एक साइड में मैप बना सकते हैं आप लाइक दिस कि 3 days और 4 days. क्लियर. सो इट वुड बी फर्स्ट 3 days इज फिक्स दैट इज x प्लस रिमेनिंग डे कितने बचे आपके पास 4. एक दिन का चार्ज y है तो 4 days का कितना होगा 4y. क्लियर. और टोटल कितना पे किया उसने 27. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ केस 2. Case 2 is said. Now this time while Sushi. So for Sushi, she said she paid rupees 21 for the book kept for the 5 days. Again 5 days. 5 days का मतलब वही 3 days तो फिक्स है. बचे कितने दिन 2 days. Clear. So 3 days का फिक्स चार्ज x and then remaining 2 days का 2 into y is equals to she paid rupees 21. So this is your second equation. So in this way you can solve the question. Basically this type of question is you must read carefully because question का जो solution होता है वो question में ही छुपा होता है. ये आपको ढूंढना होता है. Clear? Likewise हमने अभी ये डिजाइन किया. अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं राइट तो इट इज वेरी इजी. आप इसको बहुत आराम से और बिना किसी प्रॉब्लम के समझ पाएंगे. So now these are the two equations. Now solve it. Clear? So I'm giving you the solution or only framing the equations of fourth part and
fifth part of question number 2. So afterwards, everyone complete your. So now everyone complete your exercise 3.4, and if you are finding any problem, then contact to me. Okay. And try to do some question from RS Gurwal also, which is based on the same conditions. So everyone try it.